हेलो एवरीवन, दिस इज अमित मीना, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी। सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम चैप्टर 6th क्लास 7th। So in this chapter we'll discuss about some physical and chemical changes. So these are, observe this slide. Here we have so many changes around us. So in our daily life we have come across several changes. See one by one: dissolving sugar in water, formation of curd, this one, cooking of food, cutting a piece of paper, stretching a rubber band, this, melting of ice, melting of wax, boiling of water, rusting of iron, burning of candle, burning of wood and coal. So these are so many common phenomena or activities we used to see in our daily life or day-to-day life. This is, you can see, this is a rusted chain, rusted nails, burning of wood, candle, coal, boiling of water, cooking of food, etc. By the pictures you can see easily. So we'll discuss about the types of change. So changes are of two types. First one is the physical change, another one is the chemical change. So it is mentioned physical change is a change in which no new substance is formed. इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती है। और chemical change में the change is a chemical change is a change in which new substances are formed. इसमें हमेशा नए substance जो है वो बनते हैं। So एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो चेंज क्या होता है फिर इसमें देखते हैं। इन अ फिजिकल चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं में ही चेंज होता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाए, साइज में, स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काट दिया जाए या रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया जाए, आइस मेल्ट हो जाए या वाटर को बॉईल कर दिया जाए। ये सारे किस तरह के चेंजेस हैं? दीज चेंजेस आर द फिजिकल चेंजेस। कीप इन माइंड जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। इनको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सिचुएशन और कंडीशन। Next we'll talk about the chemical change. Chemical change is a change where new substances are formed. Chemical change is also called as a chemical reaction. For example, rusting of iron, burning of wood, formation of curd, milk from milk, cooking of food. Keep in mind all these changes which are mentioned here or which we can see here in the pictures. These changes cannot be reversed. So generally chemical changes are irreversible, they cannot be reversed. So we'll take one by one. First we'll study about the burning of magnesium ribbon. So you can see the picture here. Magnesium ribbon को जब जलाते हैं तो किस तरह का नजर आता है। So when a strip of magnesium ribbon is heated over a flame, it combines with oxygen. ऑक्सीजन मिलती है एटमॉस्फेयर से and burns with a bright white light. You can see this to form a powdery ash called magnesium oxide. So magnesium का formula होता है Mg. When burns means a reaction with oxygen and it is forming magnesium oxide, a powdery ash. जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं magnesium oxide, MgO. If this magnesium oxide is dissolved in water, it forms a new substance called magnesium hydroxide. जब जो ऐश हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मिला है उसको कलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है बेसिक। कैसे पता लगाएं इसको? रेड लिटमस पेपर अगर हम लोग टेस्ट करेंगे उस सॉल्यूशन पे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बिकॉज इट इज बेसिक। और रिएक्शन क्या होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO reacts with water H2O to give magnesium hydroxide MgOH whole twice. Next is the reaction between copper sulfate and iron. Dissolve some copper sulfate in a beaker, add few drops of dilute sulfuric acid. The solution is blue colored. Drop a nail or a shaving blade into it.
ऑब्जर्व द कलर ऑफ द नेल और ब्लेड आफ्टर हाफ एन आवर। कुछ भी नहीं करना है, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट ट्यूब दिखाया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम लोग कॉपर सल्फेट डालेंगे, सॉल्यूशन को पानी के साथ भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें कुछ ड्रॉप हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। बाद में क्या करेंगे, आयरन नेल डाल देंगे इसमें हाफ एन आवर के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए। डालने के बाद जब आयरन नेल को हम दोबारा से बाहर निकालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का सॉल्यूशन रह जाएगा। सॉल्यूशन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ब्लू था पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर, अब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश। और आयरन नेल आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया, ये ब्राउनिश हो चुकी है। ऐसा क्यों? A brown deposit of copper is formed over the nail or blade and the solution of color changes to green due to the formation of iron sulfate। तो यहाँ पे केमिकल चेंज है ये एक तरह का। इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर सल्फेट के अंदर हम लोगों ने डाला है आयरन, सो कॉपर सल्फेट CuSO4 reacts with iron Fe, it gives iron sulfate and copper। तो जो कॉपर बनता है वो तो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश। और आयरन सल्फेट फॉर्मेशन की वजह से जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसका कलर हो जाता है ग्रीनिश। सो ये एक तरह का केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। सो टेक सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड सम बेकिंग सोडा टू इट। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है, विनेगर उसमें हम लोग डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा जैसे डालेंगे कुछ गैसियस बबल्स फॉर्म होते हैं। सो गैस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द हिजिंग साउंड। द गैस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन क्या क्या होती है, विनेगर एसिटिक एसिड है, उसमें बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये डालते हैं तो बनता है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको और साथ में जो गैसियस बबल मिले वो किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। सो यहाँ ये रिएक्शन लिखा हुआ है। कैसे पता लगाएं कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो CO2 गैस का एक नेचर होता है कि जब इसको लाइम वाटर से पास करें तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। तो हमने CO2 गैस लिया, इसको लाइम वाटर में पास किया डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो लाइम वाटर है वो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। सो यू कैन सी इफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना है, बहुत ही कॉमन है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज ऑफ आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। तो आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो टाइम के साथ डैमेज होने लगते हैं अगर उनका प्रॉपर केयर ना किया जाए। साथ में ही दो कंडीशंस हैं, अगर उसको एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखा जाए, ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर भी हो, तो वो डैमेज होने लगेगा ड्यू टू रस्टिंग। तो रस्टिंग में एक्चुअली कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। रिएक्शन इज Fe iron reacts with oxygen O2 and water H2O, and all together these three will form rust. Rust is iron oxide. Rusting of iron can be prevented by, अब रस्टिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, बाई अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। या तो ऑयल लगा दो मेटल सरफेस पे, आयरन सरफेस पे, या फिर ग्रीस लगा दो, और बाई अप्लाइंग पेंट। ऑयल, ग्रीस और पेंट लगाने से क्या होता है, मेटल सरफेस और एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर का कांटेक्ट मेटल सरफेस से ब्रेक हो जाता है, तो रिएक्शन जब हो ही नहीं पाएगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ मेटल्स लाइक जिंक और क्रोमियम। या तो आयरन के ऊपर ही अगर जिंक मेटल की लेयरिंग कर दी जाए या क्रोमियम की कर दी जाए तो आयरन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा।
तो अगर लेयरिंग जिंक की हुई है आयरन के ऊपर तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। Next is the crystallization. So these are some chemical changes what we are studying one by one. So last is the crystallization. Crystallization में क्या करना होता है? क्रिस्टल बनाने होते हैं. The process of obtaining large crystal of a pure substance from its solution is called crystallization. किसी solution में से crystals को बनाना, pure crystals को बनाना उसी substance के, उसको हम लोग बोलते हैं crystallization. अब क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, टेक सम वाटर इन अ बीकर, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, हीट द वाटर। कुछ नहीं करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में पानी डाला, उसी के साथ कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया है और गर्म करना है उसको बढ़िया से। जब गर्म होने लग जाए, बॉयल होने लग जाए, देन वी विल ऐड पाउडर्ड कॉपर सल्फेट स्लोली एंड स्टिर द सॉल्यूशन। क्या करेंगे, धीरे से ये पाउडर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पाउडर्ड कॉपर सल्फेट है, इसको हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन में और साथ साथ स्टिरिंग करते जाएंगे, उस सॉल्यूशन को हिलाते जाएंगे। कब तक डालेंगे? टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की जा रही है, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और तब तक ऐड करेंगे पाउडर जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या करेंगे? देन फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल। अब उस सॉल्यूशन को जब और ज़्यादा घुलना बंद हो जाता है बॉइल्ड सॉल्यूशन में, उसको हम लोग फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद वी कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड। यू कैन सी दीज ब्लू कलर्ड crystals. So here one by one step you can see the diagram and the crystals also very well. So that's all in this chapter. Thank you and have a good day.